auntie talking about sex, this, that, girls. You let the guy dominate you. That's my reality. You know, I DM'd Vicky Kaushal. भैया मेरी कार ले आई सुरेश भैया. Because there is life to be lived offline. Yeah. Shit Delhi people say. Really? Hi guys, this is Urfi Javed and you are watching Uncancelable with Urfi and today we have मतलब I don't know कैसे describe करूँ मैं. बस एक वर्ड बोलूँगी और आप लोग समझ जाओगे. South Delhi. Oh my god. Come on, ये Thank कुशा you. काफिला guys. I love that. I love that. I mean, whenever someone says like South Delhi की कोई लड़की सबसे पहले दिमाग में आता है oh Kusha Kapila. You were the first one to depict like how South Delhi girls behave and you know in that way you were actually like the very first, you and Dolly, very first comedy content creators. I feel Not that. really actually. No? दिल्ली पे कंटेंट पहले बन चुका था. एक यूट्यूब पे वीडियो थी, वो वायरल गई थी. शिट दिल्ली पीपल से. Really? अभी भी मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे तो. उन्होंने पहले किया था ये. और उसके बाद भी बहुत वेरिएशंस आ चुके थे. और हमसे पहले मल्लिका दुआ ने एक्चुअली दिल्ली को काफी हद तक अपने स्केचेस में एक तरह से पर्सोनिफाई किया था. बिकॉज हमारी जो वीडियो थी वो व्हाट्सएप पे वायरल हो गई थी. पहली वीडियो ही. हाँ, आईडीवा की. हाँ, तो हमने एक्चुअली 4-5 महीने 6 महीने तक बहुत कंटेंट बना रहे थे. आंटी टॉकिंग अबाउट सेक्स, दिस, दैट, गर्ल्स, एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स, हर फॉर्मेट कर लिया था. और फिर हमने साउथ दिल्ली गर्ल ऐसी एक दिन रैंडमली बहुत ही अब्रप्टली कर लिया. हाँ, मेरी कार ले आई सुरेश भैया. आई रिमेम्बर ऑल योर वीडियोस. आई थिंक आई लाइक मेरे दिमाग में छप चुके हैं. एंड इतने ridiculous statements, right? There was one like, you know, Delhi is like South Delhi. Anything beyond that is just trying to be Delhi, yeah. So we did a dating show. मतलब I was like doing a dating show with did an episode for a dating show. So मैंने तो बहुत अपनी dating life के किस्से बता दिए. तो तुम कुछ बताओ experience और किस्सा from your dating life. यार actually I was with Zorawar for a very long time. तो अच्छा मेरी 11 साल का relationship था कि शादी थी, मतलब क्या था? 22 साल में I was with him. 22 you got married. Not married, I was with him. And then I've been you got- with him since I was 22 years And then old. what age did you like get married? 27. तो मुझे मेरे वेरीड डेटिंग एक्सपीरियंसेस तो बिल्कुल भी नहीं है. और मैं इस सब के मामले में थोड़ी लूजर ही थी बिकॉज आई एम वेरी सबमिसिव इन रिलेशनशिप्स. Okay, you let the guy dominate you. That's my reality. That's You what are I... also very friendly with Zorawar. Yeah. You guys are doing it Yes. in a very amazing way. Yeah, I think yeah. you're setting example that everything doesn't have to be messed up. Yeah. Or I don't know, you're just taking it You know, very well. honestly, I don't think about setting examples or anything because that's just too much of a pressure. कहीं ना कहीं करियर के कुछ एक दो शुरुआती दौर पे मैं ज़रूर कहूँगी कि आई यूज्ड टू थिंक कि ये जो मैं एक्शन कर रही हूँ कैसे इम्पैक्ट करेगा मेरी ऑडियंस को. तो वो एक बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ अवेयरनेस थी. दैट अवेयरनेस आई लेट गो ऑफ बिकॉज देयर इज़ लाइफ टू बी लिव्ड ऑफलाइन. तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे नहीं सोचती हूँ बट वी आर प्रैक्टिकली फैमिली टू ईच अदर. आवर फैमिलीज वर सिंक्ड. I'm in touch with his mom also. How long you guys were together? 11 years. So You've आप actually सोच grown सकते हैं up कि हाँ together. मतलब ऐसे कट थोड़ी ना होता है. जब बोला है कि म्यूचुअल है तो ऑब्वियसली इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग दैट बोथ पार्टीज केम टू ना. नाउ people want to build narratives in their heads and everything. उसका हम क्या करें. हमारा he is family to me, I am family to him. So nature बदला है रिश्ते का. ये थोड़ी ना एक दूसरे को मारने धारने पे आ जाएंगे. We talk if not every day, every alternate day. And we have a child like माया जिसको लोगों ने ह्यूमन चाइल्ड समझ लिया था जब मैंने अपने अनाउंसमेंट में कहा था. उसके लिए भी मुझे बहुत निंदा मिली थी उस समय. I like the way you said the nature of the relationship Yeah. has changed, but Yeah. not the relationship. Yeah, he knows exactly what I'm up to in my life. I know what he's up to. We are still rooting for each other. And there is not a single day when he and I will not support each other. But you know one thing that I noticed when all this was going on with you, सारी की सारी प्रॉब्लम लोगों को इंटरनेट पे तुमसे ही थी. बहुत एवरीथिंग हर बार ना एक औरत पे आके रुक जाता है कि यही कहीं गलत है. ये फेमस हो गई है तो इसने छोड़ दिया है या ये किसी और के साथ है. आई नेवर सॉ एनीथिंग अगेंस्ट इन जनरल ऑल्सो. एवरी टाइम अ रिलेशनशिप ब्रेक्स अप, पब्लिक रिलेशनशिप, इट्स ऑलवेज द गर्ल.
always. Yeah, I mean, I have managed to maintain silence through it all. मतलब मैं एक दो बार ही अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया बिकॉज आई जस्ट थॉट कि आप हैं, पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, आपके बारे में बात होगी और आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि सामने वाला आपके बारे में किस लाइट में बात करेगा. आप ऐसे तो आप हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि मैं बाल ऐसे क्यों पहनती हूँ, मैं फाउंडेशन ऐसे, व्हाई एम आई वेयरिंग दिस ड्रेस. हर छोटी से छोटी माइक्रो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. जैसे मैं टॉपिक आपके साथ बात करने की कोशिश भी इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज यू आर अ वेरी सेफ स्पेस फॉर मी. वरना मैंने देखा है कि मैं आई विल से समथिंग दैट अलूड्स टू दिस ऑल्सो ना, उसका एक अजीब सा तोड़ मरोड़ के उसकी कुछ तो न्यूज़ बना के वो आ जाती है. सो आई मोस्टली अवॉइड टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज ये मेरा निजी मामला है और इसके साथ और लोग जुड़े हुए हैं जो कि वो हैं, उनकी फैमिलीज हैं, एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ लाइक नेगेटिविटी और इवन लाइक स्पेक्यूलेशन. मतलब आप इस टाइम पे आप किस किस चीज़ को रोकेंगे. कोई अगर आप इंटरनेट पे आजकल कितनी आसानी से किसी के बारे में कुछ भी शुरू कर सकते हैं. मैं आपके बारे में कहीं पे भी जाके कुछ भी लिख दूंगी और मेरे पास आ जाएंगे कुछ 100 उस पे पॉपुलर वोट्स, तो लोग उसी को उसकी सच्चाई मानने लगेंगे. रेडिट पे जो थ्रेड शुरू होती है ना, बट द थिंग इज दिस इंटरनेट इज डेमोक्रेटिक, राइट? एवरीबडी हैज द राइट टू say whatever, do whatever. It's not about if it's right or wrong. You can't control every aspect of your life. कंट्रोलिंग तो अब क्या, ये लोग आई थिंक दिस पीपल हैव नॉट, कोई कहीं से है और आई थिंक दे नो कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. दे कैन हाइड बिहाइंड मास्क, कैन से दीज थिंग्स and maybe they want to live this life. I've realized hate knows no background. I have received it from all quarters during that little phase of my life. It didn't matter where the person came from. But like I've kind of restricted some, like I was just counting the other day, 1,000-1,500 people on my profile, restricted, not blocked. So I get to know what they're commenting, but only I get to see them. Oh shit. Because the restricted comments come as like a little थोड़े से, हाँ, आप उसको अप्रूव या डिलीट कर सकते हो. और वो सभी लड़के हैं. They're all men. I mean, you know for a fact that you'll only have to like take care of these things. But why do you think it's only men? Why? I think a lot of them, which is funny also, took it very personally. Took my news. Did you divorce them? You know, it felt like that. So I just realized that a lot of them who might have not had great experiences in their own relationships and now probably blame the woman for it or whatever, they are the ones projecting the most amount of like hate towards me. So all men, like a lot of them men, and just very pointed, very, मुझे लग रहा था कि मैं उनसे ब्रेकअप किया है मैंने. इतना उन्होंने मुझे मतलब सुनाया था. पर उर्फी भाई, आपको एक बात बताऊंगी हेल्थ को लेके. आज से कुछ 6 या 7 साल पहले मुझे एब्डोमिनल टीबी हुआ था. Oh shit. What's that? I'm so sorry. So आपके शरीर में टीबी कहीं भी हो सकता है, आपके नाखून और बालों के अलावा. And I had TB, मतलब बट मुझे लंग्स का हुआ था. मैं 1 साल बीमार थी. हाँ, तो आपको स्किन का भी हो सकता है टीबी. एंड विमेन आर मोर ससेप्टेबल टू इट आफ्टर 27 बिकॉज हमारी इम्यूनिटी यूजुअली टेक्स अ बीटिंग, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है थोड़ी. दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय डॉक्टर. आई डोंट नो इफ इट्स अ फैक्ट, सो डू नॉट लाइक होल्ड मी टू इट. इन केस आई एम रॉन्ग, जस्ट करेक्ट. दिस इज अनकैंसलेबल विद उर्फी. No one will hold you against it. So that's what I've heard, that women are more susceptible to it. So I think मेरी इम्यूनिटी डाउन हुई थी, मुझे एब्डोमिनल टीबी हो गया था, which means कि मेरे एब्डोमेन में TB हो गया था. And I had a lot of acidic fluid. I had no idea yeah, about dude, it. it's weird. Fuck. And I had a lot of acidic fluid जो मेरे बॉडी से ड्रेन करना पड़ा था. Like surgery or something? Like they just put a syringe in my tummy and just drained the acidic fluid from my body. तो मेरी तब से हेल्थ को लेके बहुत फटी रहती है. जब कोविड भी आया था तो थोड़ा सा एक वो था कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं दे शुड बी केयरफुल ऑफ कोविड, स्पेशली जिनको लंग का टीबी है. और मेरे को एक और स्कैर हो चुका है टीबी का. तो जब मुझे टीबी हुआ था ना, और जब हम फिगर आउट कर रहे थे कि टीबी है कि नहीं, टीबी फिगर आउट करने में टाइम लगता है. और टीबी के सिम्टम्स ना थोड़ा मिरर करते हैं थोड़ी बड़ी बीमारी के सिम्टम्स को, तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है. तो मेरे डैड डॉक्टर के पास गए और हम सब बैठे हुए हैं. और तब तक मुझे पता है कि मेरी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री मोस्टली क्लीन है. आपको अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए बिकॉज आपको बहुत चीज़ें आशीर्वाद में मिल सकती है उनसे. ठीक है. तो मेरे डैड बैठे हुए हैं तो वो डरे हुए हैं. ठीक है. और वो कह रहे हैं टीबी लग रहा है डॉक्टर कह रहे हैं. और डॉक्टर ना सिर्फ मोनोसिलेबल्स में या बहुत ही 3 शब्दों वाले सेंटेंस में बात कर टीबी लग रहा है. मेरे डैड कहते हैं हाँ पर वो सी वर्ड तो नहीं है ना, सी वर्ड विच इज कैंसर. सी वर्ड तो नहीं है. एंड ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स फियर फॉर इट विच इज़ फाइन बिकॉज बहुत टेस्ट कर चुके थे, फिगर आउट नहीं हो पा रहा था क्या है.
तो सी वर्ड तो नहीं है, तो कहते लग तो नहीं रहा है मेरे को, लग तो नहीं रहा है, क्या हिस्ट्री है फैमिली में? तो मैंने कहा नहीं सर हिस्ट्री तो नहीं है. एंड माई डैड लुक्स एट मी, नहीं सर हिस्ट्री तो है, इनके दादाजी को हुई थी. एंड आई वाज लाइक हाउ डेयर यू नो, मतलब सेकेंड स्टेज उनका हुआ था. And I'm like, how can you not tell your family that we have a history of cancer in our family? Like, it would help, it would inform our future decisions related to our medical issues. Then he was like, अच्छा. और TB की हिस्ट्री है कोई फैमिली में? तो मैंने कहा नहीं सर TB की तो कोई हिस्ट्री नहीं है. माई डैड है, इनकी दादी को हुआ था. अच्छा, मुझे भी हुआ है, और इनके चाचा को 2 बार हुआ है. इनफैक्ट एक बार तो हमको लगा कैंसर है. And I'm like, suddenly in that one meeting when I am getting diagnosed for abdominal TB, I get to know my entire family medical history. And I'm like, how could you not tell us? तो मेरी हेल्थ एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है. मैं साल में 3 बार तो अपने रैंडमली ब्लड टेस्ट एंड ये टेस्ट वो टेस्ट यूरिन टेस्ट तो कराती हूँ. I'm just too scared to get it done. It is, and this is such a real anxiety for me. तो इस साल जब मेरे वो मार्कर्स ठीक नहीं आए, one of which was marker for cholesterol and sugar and all, and I was like ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो जो मेरा अंदर का जैसे निश्चय था ना वो और दृढ़ हो गया कि अब तो मैं आई कैन नॉट. मेरे को मेरी थेरेपिस्ट ने बोला कि यू हैव ट्रेट्स वेरी सिमिलर टू लाइक अ हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, विच इज़ जब आप पे काम होता है तो आप एड्रेनलिन पे होते हो. जैसे ही वो काम हमारे साथ होता है ना कि हम बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, फिर एक स्लम्प आता है जब एक हफ्ता आपके पास कुछ करने को है नहीं. same, I think I'm going through that. वो स्लम्प आता है ना, और उस स्लम्प में हम अपना रूटीन ही छोड़ देते हैं लाइफ. So my God, same. तो मेरी थेरेपिस्ट ने बोला द वे व्हाट शी डिजाइंड फॉर मी वाज कि अपन एक काम करते हैं, तुम जब फ्री होते हो तो एक एक्टिविटी है उस पर अपना दिन एंकर कर लो कि मैं रोज़ वर्कआउट करने जाऊंगी या कि मैं आज वॉक पे जाऊंगी. इफ़ इट्स नॉट वर्कआउट कि मैं 2 बजे तक अपना लंच खा लूँगी. एक एक्टिविटी दिन में जिस पे आप अपना दिन एंकर कर सकते हो, सो यू विल फील सम सेंस ऑफ रूटीन इन योर लाइफ. And productivity maybe. Yeah. But how was your experience? When did you start therapy? मेरा तो मैंने थेरेपी ली थी बहुत ही बुरे ट्रोलिंग एपिसोड के बाद in 2020. And you know, the criticism is never on your work. The criticism is on how you look, your body, your weight, your eyebrows, all of that. It feels like जैसे स्कूल में जो बुलिंग के एपिसोड्स होते हैं ना, जहाँ पे आप 10 लोग खड़े होकर आपकी तरफ पॉइंट आउट करके ऐसे हंस रहे हैं. अगर ये आपने किया है तो भी अच्छी बात नहीं है, आपके साथ हुआ है तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है. सो इट वॉज एन एपिसोड लाइक दैट. बट द इश्यूज दैट आई वॉज एबल टू सॉर्ट आउट थ्रू थेरेपी वॉज लाइक, एक तो आई हैड लाइक एन अनडायग्नोज्ड ADHD because a lot of my ADHD which was like an attention deficit. I've heard about it कि अमेरिका में बहुत बच्चों को होता है तो उनको दवाइयाँ भी देते हैं. There is a lot of people get misdiagnosed also with ADHD. Okay. But like with me, she said that you've been able to navigate your life, so it's okay. You've found your own system, how to sort of navigate this life, so it's fine. So it wasn't like an issue, but it's always good to know that why you behaved a certain way in your childhood and as an adult. So it really helps you. I'm just very scared, honestly. I don't know, मतलब पता नहीं what is this thing holding me back. I just feel I'm not a very emotional person. I'm very detached. हाँ, detached ही हूँ मैं सबसे. तो मैं वो इमोशनल साइड अपने थेरेपिस्ट को भी नहीं दिखाना चाहती हूँ. आई डोंट बट करके देखो. आई फील लाइक व्हेन यू विल बी रेडी. Like nobody should be forced into therapy. Nobody should be forced into looking for answers. So हम बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे with our movie star. Bitch, you're a movie star now. Sure. Shut up. You've done like 2 movies. I saw Sukhi, तो मैं देखने भी गई थी. I have done movies. I have starred in some movies. That's all I can take from a movie star. You've done Sukhi, जो मैं गई थी देखने. It was amazing. I liked it. Nice. I think it was very cute. It got some decent reviews, yeah. I found it very cute. Yeah. And then thank you for coming. मैंने अभी देखी. But आपको acting करनी है? अरे मैं तो एक्टर ही बनने आई थी. Honestly, Urfi, you're at a point in your life where genuinely मुझे ऐसा लगता है कि आप एक प्रोजेक्ट कमीशन कर सकती हैं. आप किसी राइटर को कह सकती हैं कि अगर आप पे कोई स्क्रिप्ट है जिसमें मैं फिट होती हूँ, क्योंकि राइटर्स के पास बहुत कहानियाँ है. इस शहर में राइटर्स के पास बहुत कहानियाँ है और आप अपने लेवल पे उसको पिच कर सकती हैं. कोई भी राइटर हैं जिनके पास कोई कहानी है जिसमें उर्फी
कोई सेक्स बुक्स मत डाल देना मैं कोई नहीं है ना, डालेंगे भी तो अगर मतलब कहानी में उसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए. I'm very uncomfortable. Done. Then if anybody has a nice story for Urfi, please reach out to, what's your email ID? मेरी इंस्टाग्राम पे उर्फी के इंस्टाग्राम पे ईमेल आईडी है, प्लीज रीच आउट टू हर. ट्रस्ट मी, देयर आर लॉट ऑफ राइटर्स इन आवर सिटी. बट यू डिड दीज अमेजिंग मूवीज एंड प्रोड्यूसर्स तुम्हारे लिए रोल लिखते हैं. Like I've seen Sukhi, I feel they must have you in mind when they wrote that. सुखी एक्चुअली मैंने जो रोल किया है उसके लिए शिबानी बेदी ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी थी. Really? Yeah. And she couldn't do that project and that project fell into my lap and thank you so much शिबानी for it. पर सोनल जिन्होंने वो फिल्म करी है वो मुझे बता रही थी कि जब वो ऑडिशन ले रहे थे मेहर के रोल के लिए तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी होगी जैसे कुशा जो कैरेक्टर्स करती है, पर दे नेवर थॉट ऑफ ऑडिशनिंग मी. Why? Can you believe it? They were कुशा जैसी होगी but कुशा मे बी दे थॉट बिकॉज वो 97 के बैच की है ना. आई एम प्लेइंग अ 40-year-old रोल्स, वो लाइक 40-year-old का रोल है वो. एक्चुअली वो लगता नहीं है मेरी एज बिकॉज वी ब्रिंग दिस काइंड ऑफ लाइक यंग एनर्जी इन टू द फिल्म, बट एक्चुअली वो 40 साल की औरत का रोल है तो उनको लगा शायद मुझे नहीं करना होएगा. पर क्योंकि मैं आंटी का रोल्स करती थी ना और फिर बहुत समय तक, तो मुझे 40-45 साल की लड़कियों की रोल यूजुअली ऑफर होते थे. Thank you for coming. It was normal age. मतलब Thank you for coming was very like ambiguous age, but mostly like late 20s, early 30s type का था. and it was decent. मतलब Yeah. all both two movies were like women बीच में, you know, औरतों के ऊपर हाँ, stories. औरतों के द्वारा और औरतों के लिए लिखी हुई टाइप की फिल्म. But and both movies had like great people. शिल्पा शेट्टी तो मतलब she's nice यार. सुखी पे मैंने सेट में ज्यादा समय बिताया है तो वो अलग रिश्ता है मेरा उनके साथ. How is she as a person? I've met her once. शिल्पा तो यार बहुत ज्यादा फन है. शिल्पा मतलब इतनी, वो भी गर्ल टाइप है Yeah. और सॉर्टेड हैं. मैं हमेशा बहुत इंटरेस्टेड थी इसमें कि वो क्या खाती हैं, उनका दिनचर्या क्या है, उनका रूटीन क्या है. एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड बिकॉज इट्स शिल्पा शेट्टी यार. मतलब आप उनके साथ फिल्म कर रहे हैं तो वो एक और तो होता ही है, बट अमेजिंग है यार वो. मतलब She's very sweet. I went to her place like राज के साथ मैं रील बना रही थी. सो आई थॉट आई जस्ट मीट राज. मतलब हम रील बना के मैं निकल जाऊंगी. सो रील बन गई. बट देन शिल्पा वाज लाइक नो यू आर कमिंग अपस्टेयर्स, आई हैव अरेंज्ड टी एंड स्नैक्स फॉर यू. हमने अरे इसकी जरूरत नहीं थी यार. हाउस इज मैग्निफिसेंट. Oh my god, that is not a fucking house, it's a palace. Raj, I mean, I couldn't believe when she said second floor पे चलते हैं. Like, इसके क्या ये पूरा, she's like, this whole building is ours. And I'm like, you're kidding me. जैसे सोशल मीडिया पे भी अभी कॉमेडी क्रिएटर्स इतने सारे आ चुके हैं. So do you feel that competition? No, not now. Not now? I feel like I'm not sounding complacent, but मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो करके दिखाया है. ठीक है, अब ये और अच्छा हो सकता है. इसकी मेरी लेगेसी बेटर हो सकती है अगर मुझे अच्छा काम करना है. मेरी स्टोरी टेलिंग बेटर हो सकती है. मेरा क्राफ्ट बेटर हो सकता है. मेरी एक्टिंग बेटर हो सकती है. So are you concentrating on movies or content creation? I feel right like now? both. And I'm also not feeling the need to wake up every day to prove myself. बिकॉज लाइक लगातार 4-5 साल काम किया और उससे पहले मैं 7-8 साल कॉर्पोरेट में काम किया है. कॉर्पोरेट में? हाँ. Which job? Like what were you doing? Multiple jobs. I started as a fashion forecaster at the age of 22. Then I went into... What is fashion forecaster? Basically जो future fashion forecast करते हैं. Really? स्टडी, मतलब आज से 4 साल बाद क्या ट्रेंड होने वाला है. I had no idea. हाँ. मतलब अभी आप Did you forecast about me? About you, not so much about कि किस तरह की सुंदर परियां आने वाली है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, but mostly about fabric, style, silhouettes. बहुत ही टेक्निकल है. It's very technical. It's very technical. Sounds very tricky also. तो आप पुराने ट्रेंड्स देख के फिगर आउट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो मैं वो बुक्स लिखती थी. ऑथर करी हुई है मैंने 2 फैशन फोरकास्टिंग बुक. Really? Yes. मतलब I had no मैस्ट हेड idea. पे मेरा नाम है. तो वो करा. फिर मैंने कॉपी राइटिंग करी है कुछ समय के लिए, 4 या 5 महीने के लिए एडवर्टाइजिंग ऑफलाइन कॉपी राइटिंग करी है. वो मुझे इतनी जॉब पसंद नहीं आई क्योंकि मैं यूजुअली बैंक्स के लिए और एक बाथरूम फिटिंग्स वाले ब्रांड के लिए काम करी थी. ग्रोहा या ग्रोहे करके एक ब्रांड होता था. Okay. तो मुझे वो मज़ा नहीं आया. फिर मैं गई ई कॉमर्स में जहाँ पे मैंने एज अ कंटेंट मैनेजर काम किया कुछ 2-2.5 साल. उसके बाद मैं गई टाइम्स ऑफ इंडिया में. आईडीवा करके वेबसाइट है. Yeah, of course I know. वहाँ पे मैं एक्चुअली एंटरटेनमेंट राइटर, जूनियर फैशन एडिटर और एंटरटेनमेंट राइटर के तौर पे
मैं सिलेक्ट हुई थी और मैंने एक 1.5 साल राइटिंग करी है और फिर उसके बाद हमने ये वीडियोस बनानी शुरू हाउ डिड दे करी लाइक है। स्पॉट यू कि तुम कर लोगे लाइक उन्होंने अपने सारे राइटर्स को कैमरा के आगे डाल दिया था। पैसे दिए थे ना एक्स्ट्रा? नहीं, हमने जितना हम राइटिंग के पैसे मिल रहे थे उसी पैसे में फिर हमें अच्छा खासा हाइक मिला था, हाइक मतलब हमें रेज मिला था। because I think Idea, I mean, I think I will say it. I think people started knowing Idea because of you and Dolly. मी, डॉली, शिबानी, स्तुति, संटू जो कि हमारे क्रिएटिव संटू, डायरेक्टर yeah. थे, उनका बहुत मैं कहूँगी सबसे बड़ा योगदान है। हमारी जो एडिटर थी अंबिका मट्टू, उनका हमारे पे फेथ होना। Okay, so last time Dolly was here, I asked her like कि बहुत ऐसे celebrities आते थे. So if all of them were nice to you, bad experience हुआ है, even you meet them now also, you go to a lot of parties and बहुत everything. तरीके से और तमीज से बात करते हैं सब लोग। Who still date like the nicest celebrity? ऑल ऑफ देम यार, मतलब मैं जब हम पहली बार करीना कपूर और सोनम कपूर से मिले थे, दे मेट अस वेरी नाइसली। मुझे लाइन से याद है जिन सबके साथ मैंने काम किया हुआ है, वेदर इट्स विकी कौशल, वेदर इट्स कटरीना कैफ। Oh my god, I only have Katrina the most seems wonderful really nice, things to yeah. say about Katrina Kaif, यार। You know, I DM'd Vicky Kaushal once. Yeah? बहुत साल पहले he was not. Should I show you? Yeah. He replied. He replied, he's a top notch. उसकी मसान मूवी आई थी, मुझे लगा ये, मैं समझ गई थी मेरे अंदर What एक an actor, man. हाँ मतलब मैं देख के समझ गई थी ये बंदा स्टार बनेगा, तो मैंने कहा ये तो अपना स्टार है। आई लव्ड मसान सो मच, मैंने विक्की कौशल को DM किया, लव्ड मसान ये वो, और मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स थे विक्की कौशल से, मेरे ज़्यादा थे, तो ही रिप्लाइड थैंक यू उर्फी। How sweet. गाइस मैं इनसे इंडिविजुअली मिली हुई हूँ अलग मैं अलग। मिली नहीं कब से, बट अब मैं उसको दिखाऊंगी जब मैं मिलूंगी विक्की। बहुत ही मतलब अमेजिंग पीपल, अमेजिंग आर्टिस्ट। बट वाज इट डिफिकल्ट टू गेट इनटू मूवीज लाइक? आई हैव बीन ऑडिशनिंग सिंस 2020, तो वक्त लगा है। और Same, sir. मेरे मेंटोर ने एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात बोली थी, संटू ने, कि जितना समय तुमने क्रिएटर बनने में लगाया है उतना या उससे थोड़ा और समय तुम्हें एक्टर बनने में लगाओ तो सही, और फिर कंप्लेन करो ना। ये कैसी इंटाइटलमेंट है कि क्रिएटर है तो कुछ भी एक्टिंग जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये अलग इंडस्ट्री है, इसके अलग रूल्स हैं, अलग इसके तौर तरीके हैं, तो आप करो ऑडिशन। तो मैंने भरपूर ऑडिशंस दिए, मैंने बहुत ऑडिशन किया, ऐसा कोई रोल नहीं है जो मुझे ऑडिशन के बिना मिला है। सुखी के लिए आई ऑडिशनड, TYFC के लिए आई ऑडिशनड। ऑडिशन तो करना ही पड़ेगा ना, और उनको मेरा काम अगर पसंद आया ऑडिशन में तो उन्होंने मुझे हायर किया है। अच्छा, थोड़े दिन पहले ना मैं डॉली से बातें कर रही थी लाइक ऑफ कैमरा, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि लाइक शी इज डन मूवीज, तुमने भी मूवी कर ली, बट अभी ना किसी इवेंट में उसको एज एन इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं और उसको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे यू नो शी इज लाइक I don't think so influencers are treated nicely when they're called for some promotions or something. So has that happened with you? I think a lot of times it's our own insecurity also. मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एक तो डिफ्लेटेड ईगो के साथ जा रहे हैं, जो कि हम बहुत क्रिएटर्स जाते भी हैं, वी हैव अ ह्यूज इम्पोस्टर सिंड्रोम, ह्यूज सेंस ऑफ सेल्फ डाउट, तो हम एनीवे हमें हर चीज़ ज़्यादा चुभती भी है। Yeah. बट लेटली आई हैव रियलाइज दैट विच इज़ एक तो नॉट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली एंड टू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर कोई आपसे तमीज़ से बात भी नहीं कर रहा है या आपसे आँख में आँख मिला के बात नहीं कर रहा है, तो मैं सोचती हूँ वो उनका इशू है। आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी। आई हैव इन फैक्ट स्टार्टेड टू रियली इन्जॉय अटेंडिंग एन इवेंट प्रोसेस, बिकॉज उसका प्रोसेस क्या होता है कि आप अपनी टीम के साथ बैठेंगे, तैयार होंगे, आप लुक्स करेंगे। मैं उस टाइम मतलब गाने सुन लेती हूँ, अगर मैं कोई फ्रीक आउट हो रही हूँ अपनी लुक को लेके तो मैं वो कर लेती हूँ सॉर्ट। एंड बॉम्बे में आके आई हैव रियलाइज्ड कि लॉजिस्टिक्स ही फिगर आउट करने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, इस इवेंट पे अगर 7 बजे पहुंचते हैं तो इतने बजे निकलना है, इतने बजे। द फैक्ट दैट आई रीच एन इवेंट is such a big issue is such a achievement for me. You're always late or you're always on time? I'm kind of like a late person. Okay. And I'm working so hard on my punctuality, like, and it's not happening. Usually 20 minutes late तो मैं होती हूँ हर जगह। एक तो मुझे अपने क्रिएटर वाले टाइटल से बहुत प्यार है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं वो कभी भी उस टाइटल को गिव अप ही नहीं करना चाहूँगी। मतलब मुझे चलता है अगर आप मुझे एक्टर ना बुलाएं, इट्स ओके, क्योंकि मुझे जो मिला है वो इस टाइटल से मिला है, राइट? हाँ. और अगर हम इस फील्ड में, हमारी इज्जत है, इस फील्ड में हम हैं उस लेवल पे जहाँ पे हमें एक तरह का एक इज्जत मिलती है, देन व्हाई नॉट? बिकॉज इस इंडस्ट्री में हर 6 महीने में तो ट्रेंड्स बदलते हैं, हर 6 महीने में नए क्रिएटर्स आते हैं, अब तो मैं कहूँगी हर 3 महीने में बहुत नए क्रिएटर्स आते तो मैं वही सोचती हूँ कि मुझे तो अच्छा लगता है अगर आप मुझे एज अ क्रिएटर भी बुलाए। Here's to more sisterhood
And love sisterhood all the way, all the way. man. So it was amazing speaking to you, Kusha. It I was think so nice after this speaking to you. podcast, you're going to inspire like a lot of women. You think so? 110%. I am inspired. I am inspired the way you've carried yourself through everything that you've been through. It was Thank you. amazing having It's you. always so nice talking to you, Urfi. And Urfi, I feel like it takes a lot to stand in the face of, like, I feel like hate and Yeah. this general, I feel like, disregard for women, and in the face of the idea of how women should be. So for you to be able to disrupt that, stick to that, say what I you will, have I to, will. be fearless about your opinions, whether it's like political, whether it's like about a general popular opinion that's going on the internet. You are never scared to say what you want to, and I really look forward to Thank the you. inventions you do when it comes to your outfits, because I am from NIFT. I've done my Really? bachelor's in design. Oh, और जिस nice. तरह के आप कपड़े पहनती हैं वैसे प्रोजेक्ट्स होते थे हमारे कॉलेज में. So, guys, this was Uncancelable with Urfi and Kusha. Hope you enjoyed it. See you in the next episode. Do not cancel us for anything we've said on it.